غزہ کے قریب انسانیت کا بیڑا اسرائیل کے قبضے میں، غزہ کی مدد کو جاتے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کا حملہ، عالمی امدادی کارکن گرفتار کر لیے، قافلے میں پاکستان سمیت 44 ملکوں کے 500 سے زائد افراد شامل، فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی نیوی نے دھاوا بول دیا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ پاکستان کے مشتاق احمد خان کو حراست میں لیا، 43 کشتیوں کو اشدود بندرگاہ پہنچایا جا رہا ہے، زیر حراست انسانی حقوق کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ 44 ملکوں کے لوگ اہل غزہ کی پکار پر امداد لے کر 31 اگست کو اسپین کے شہر بارسلونا سے نکلے تھے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی محاصرہ توڑ کر بھوک سے بلکتے فلسطینی بچوں تک امداد پہنچانا تھا۔ فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی ابھی تک اسرائیلی پہنچ سے دور غزہ کے پانیوں میں پہنچ چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ، عظیم امدادی مشن میں شرکت کرنے والے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا مشتاق احمد، مظہر سعید، وحاج احمد، اسامہ ریاض اور دیگر پاکستانیوں نے عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانیوں کی انصاف کے لیے جد و جہد اور مدد کے جذبے کی نمائندگی ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستانیوں کی سلامتی، وقار اور جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی فلوٹیلا پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، صدر مملکت کا فلوٹیلا میں شریک پاکستانی شہریوں کو خراج تحسین، کہا امدادی مشن پر حملہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ، دنیا بھر میں مظاہرے، پیرس میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جمع، اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ترکی، ملائیشیا، تیونس، اسپین، یونان، ارجنٹائن اور ڈنمارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کو تشدد سے روکنے اور اسلحے کی فراہمی بند کرنے کے لیے بھی آواز اٹھائی گئی۔ ہالی ووڈ کے 5000 سے زائد اداکاروں، فلم سازوں اور صنعت کاروں نے اسرائیلی فلم انڈسٹری کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، موقف اپنایا۔ یہ انسانی حقوق کی حمایت میں ایک غیر جانبدار اقدام ہے۔ مقصد غزہ میں جاری تنازع اور اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ ملیشین وزیر اعظم نے کہا انسانی ہمدردی کے مشن کو روک کر اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی عوام کے حقوق بلکہ بین الاقوامی ضمیر کی بھی توہین کی ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے امدادی کشتیوں پر حملے کو ڈکیتی قرار دیا، کہا نیتن یاہو قاتل اور امن دشمن ہے، امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے۔ سموتھ فلوٹیلا پر حملے کے خلاف پاکستان میں بھی احتجاج، کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت احتجاجی مظاہرہ مارچ میں تبدیل، نمائش تا تبت سینٹر ریلی نکالی گئی۔ اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کل ملک بھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہرے، حکومتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات جاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی ٹیم مظفر آباد پہنچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا، کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں، قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، مذاکراتی کمیٹی مسائل کا فوری اور دیر پا حل نکالے، ایکشن کمیٹی کے ارکان حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی مسئلے کے پرامن حل کے لیے پر امید،
कमेटी की क़यादत करने वाले राजा परवेज अशरफ का कहना है ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान और कश्मीर के दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। कोशिश है बातचीत से मसाइल का हल निकाल लें। राना सनाउल्लाह ने कहा तशद्दुद से मामला सुलझते नहीं उलझते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा आवाम से अपील है ऐसे अनासिर से दूर रहें जो पाकिस्तान के अमन में खलल चाहते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा मुज़ाकरात में जो कमी रह गई थी कोशिश होगी उसे दूर किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासर दुश्मन की इमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हमा वक्त तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पिम्स में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की, हिम्मत और हौसले को सराहा। पिम्स में इस्लामाबाद पुलिस के 31, आज़ाद कश्मीर पुलिस के 12 एहलकार ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है उसका उशरे अशीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद। हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात के दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। चंद शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले कर दिए, एहलकारों से असलहा और दीगर सामान भी छीन लिया। जख्मी एहलकार का कहना है हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी, पत्थर और डंडे मारे, फायरिंग की, आंसू गैस भी फेंकी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से एसपी भी जख्मी हुए। पुलिस पर बिला इश्तियाल फायरिंग में आज़ाद कश्मीर पुलिस के एएसआई समेत 3 एहलकार शहीद और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा और तोड़फोड़। मुजाहिरीन समझकर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैफेटेरिया में मौजूद सहाफ़ियों पर डंडे बरसाए। पुलिस ने सहाफ़ियों को लेटा कर मारा। सहाफ़ियों का पुलिस हमले के खिलाफ एहतजाज। सदर PFUJ अफजल बट ने कहा बदतरीन वाक़े पर आंखें बंद कर लें तो ये वाक़या दीगर जगहों पर भी पेश आ सकता है। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा तो दहशतगर्द के साथ भी नहीं होता। ये 40,000 सहाफ़ियों पर हमला है। मुल्क भर के प्रेस क्लब से राब्ता करके लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कल यौम स्याह मनाया जाएगा। मुल्क भर में मुजाहिरे होंगे। सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली ने कहा ये क्लब नहीं पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर हमला है। मजम्मत से काम नहीं चलेगा। CPNE, PFUJ और MN ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सहाफ़ी तंजीमों ने वाक़े को सहाफ़ियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दिया। बयान में कहा पीका एक्ट के बेदरेग इस्तेमाल ने खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। इंटीरियर मिनिस्टर ने भी उस वाक़े की मजम्मत की है। मैं भी इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरू प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से, पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी नेशनल प्रेस क्लब पहुँचे। कहा पुलिस एहलकारों को प्रेस क्लब के अंदर नहीं आना चाहिए था। बतौर वज़ीर मुमलिकत पुलिस की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांगने आया हूँ। बाहर एहतजाज करते मुजाहिरीन ने पुलिस के साथ हाथापाई की। कुछ लोग भाग कर प्रेस क्लब के अंदर आए। जो वाक़या पेश आया पुलिस और इंतज़ामिया का कतन ऐसा कोई इरादा नहीं था। IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है।
भारतीय कप्तान का बड़ा नहीं बहुत बड़ा यूटर्न। सूर्या कुमार यादव एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। कहते हैं हम तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को तैयार थे, किसी ने दी ही नहीं। 1.5 घंटा मैदान में खड़े इंतजार करते रहे। भारतीय मैनेजमेंट ने पहले ही एसीसी सरबराह से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। ट्रॉफी ना मिली तो सारी अकड़ निकल गई। मोहसिन नकवी कह चुके हैं अब ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी के दफ्तर आके ले लो। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हमेशा पंजाब की बात करूंगी और उस पर माफ़ी भी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा सैलाब आया तो लेक्चर दिया गया कि दुनिया के आगे हाथ फैलाओ। आज हम IMF के ग़ुलाम बने हुए हैं। कुछ करने का सोचती हूँ तो सुनने को मिलता है कि IMF नहीं मानेगा। ये कितनी बड़ी तज़लील है। मैं अपने लोगों को कभी कशकोल पकड़ने नहीं दूंगी। अवाम काम करने वालों और सिर्फ बातें करने वालों में फ़र्क समझें। आप चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते रहें तो फिर हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमारी लीडरशिप के लिए इज्जत से तो तरीका हो। जब आप कहते हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी तो फिर एक सूबे का इशू हो जाता है। नून लीग चाहती है सपोर्ट करते रहें तो पीपी लीडरशिप को इज्जत दे। कुछ रेड लाइंस क्रॉस नहीं की जाती। जब आप कहते हैं मेरा पानी मेरी मर्जी तो फिर पार्टी का नहीं सूबे का इशू बन जाता है। पीपी रहनुमा सैयद नवेद कमर का कहना है इसहाक डार से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात रखे जिसका मुस्बत रद्द अमल आया। पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश, हुकूमत का एक बार फिर राब्ता। पीपी क़यादत से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी ने पार्टी क़यादत की अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया। बताया आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो मुल्क में मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पीपी क़यादत को बराह रास्त एतमाद में लेना चाहते हैं। बाजोड़ में खवारिज की जानिब से घरों के अंदर खोदी गई खुफिया सुरंगों का इंकशाफ। खुफिया सुरंगों को असलहा, ज़ख़ीरा और पनागाहों के तर्ज पर इस्तेमाल किया जाता रहा। खवारिज घरों में छुपकर रियासत और अवाम मुखालिफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करते रहे। हालिया ऑपरेशंस में इन सुरंगों और असलहे के ज़ख़ीरे बरामद करके बतौर सबूत अवाम को दिखाए गए। फितना खवारिज का शहरियों और घरों को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल करना बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत अमल है।